when they tell themselves, about themselves, to you all, who they are, what they actually do. So we'll start with a very brief introduction from each one of you, so that you can talk about yourself. What do you do? Actually, we keep it very short, and then from that, after we start asking questions about your entrepreneur journey. Haji, so if you would like to introduce yourself and just give a bit glimpse, what do you do, what your company is all about, and then probably we'll take it forward. Yeah. Okay, very good evening, everybody. And it's brilliant to have so many people today turning up for the event. Thank you for yourself. Hello everyone, myself Leena, and I'm a proud Amway distributor, and I'm building this business with my husband, and we are dealing in health and wellness and beauty segment, and we are proudly doing this business. Thank you. Thank you so much. Over to you, Abhilasha. Hi everyone, I'm honored to be part of this panel. Thank you to PhD CCI She Women for creating a platform that celebrates and supports women entrepreneurship. It's amazing to be surrounded by so many inspiring minds. Thank you so much, Alka ma'am. At You Engage, we are a D2C enablers for F&B industry. We help restaurants empower restaurants to launch their e-commerce ordering solutions. So we have different ordering solutions, right? We have clients like Lapinos, Theo Brahma, Bikaner Wala, Samosa Party, Wow Moose. So we have an array of products. Probably we can have all this discussion during the networking if anyone is interested. Thank you. Good evening everyone, my name is Swinky and I am the founder of Code Aurorix. So in Code Aurorix, we provide software solutions and services to our clients globally, and also we have a SaaS platform which prepares students and professionals for their certifications. Thank you. Mentoring women, and working, and specifically in the business direct selling, where the business is built through personal connects, and the trust, most importantly. So I really want to ask you, what motivated you to step into this style of entrepreneurship, and how did you find your footing in the early days when everything felt new to you? How did you got into this? See, my entry into this business was unexpected because I was from the my family was from the job background, और कभी हम आए नहीं, कभी अपने business का भी नहीं देखा था, और जब when I got married to KK, my husband, he was running an educational institute, and हम अपना इंस्टीट्यूट खोलते थे सुबह 5:30 बजे, रात को बंद करते थे 8:30. हमारे 2 इंस्टीट्यूट थे, एक चंडीगढ़ में, एक पंचकुला में. सो वी वर फुल्ली ऑक्यूपाइड जब ये बिजनेस हमें इंट्रोड्यूस हुआ. तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली इस बिजनेस में आए, और मगर कहते हैं जब हम एक ऐसी मीटिंग में गए, गैदरिंग में गए, तो वहाँ ना जाके मुझे एक विजन मिला, क्योंकि देखो लाइफ में कुछ ना कुछ तो हम देख ही रहे थे. वी वर सो मच बिजी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई, आई वॉज 24 एंड ही वॉज 26. तो हमारे पास पर्सनल टाइम कुछ नहीं था, और he used to open the institute right in the कहते हैं ना मॉर्निंग 5:30, और शाम को 8 o'clock तक हम बंद करते थे. तो अगर हम मी टाइम कहूँ तो मी टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, और जो हमारी पर्सनल लाइफ थी दैट वाज हेल. तो मुझे तो कई बार ये लगता था कि शादी हो क्यों गई, है ना, इससे अच्छा तो होती नहीं. तो मी टाइम तो ज़ीरो ही था. तो देन कहते हैं ना उसी पीरियड में ये बिज़नेस हमें इंट्रोड्यूस हुआ. बट आई रियली थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लिया, क्योंकि इस बिज़नेस के थ्रू ना आई एम अ फुल टाइम मदर, और एक क्वालिटी लाइफ कहते हैं ना अपने बच्चों के साथ मैं स्पेंड कर रही हूँ, और क्वांटिटी नहीं, एक क्वालिटी लाइफ, और बिजनेस को भी इंजॉय कर रही हूँ. एक रिकग्निशन भी है यहाँ पर, एक अपनी पहचान बनी है, अपनी आइडेंटिटी बनी है मेरी. और फुटेज मुझे देखिए कहाँ से मिला कि when I entered into this business was really कहते हैं ना एक न्यू चैप्टर था मेरे लिए, एक न्यू कॉन्सेप्ट था. बट आई स्टार्टेड लर्निंग. तो डायरेक्ट सेलिंग है ना, व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, और लर्न किया हर चीज़ के लिए, और कंसिस्टेंट रहे. धीरे धीरे कहते हैं ना ग्रेजुअली थोड़ा हेजिटेशन थी, बट उसके बाद वही पैशन बन गया.
you know. But it is a business where personal connect is required. It is a business where you have to build a network. You know, so resilience in the field is must out here, you know. And you know, direct selling requires persistence actually. And you know, at times facing rejection, building confidence, you know, learning continuously and evolving at times. So I really want to know, you know, can you actually share your moment, you know, one of the moment where you thought, you know, your business is challenged you deeply, and what helped you to stay committed instead of, you know, stepping back? See, when I started this business now, we were already running an institute, and मुझे लगा कि ये एक और वेंचर ना मेरे ऊपर आ गया है, बट मेरे को लगता है कि देखिए चैलेंजेस तो बहुत आए हैं लाइफ में, बट आई कैन नॉट डिस्कस इट हियर. मेडिकली भी आए हैं, और कहते हैं ना लिटिगेशन वाइज है ना, वो भी आए हैं, बट आई कैन नॉट डिस्कस इट हियर. बट कहते हैं ना कि देयर वाज मेंटरशिप एंड देयर वर कोचेस हु बिलीव्ड इन अस, और उन्होंने हमें मेंटर किया, और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है ना. और एक्सक्यूज मी, व्हाट यू आस्क्ड? I asked, like, what kept you strong during that time? Yes, एक्चुअली मेन चीज़ थी कि एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन, वी वर इन द एसोसिएशन ऑफ द लाइक माइंडेड पीपल, जहाँ अपलिफ्टमेंट बहुत थी. और समटाइम्स ऐसा होता ना, कई बार बच्चों का चैलेंज भी आता था, तो हमें लगता था यार हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, या हमारे बच्चे ना अभी कैसे करेंगे, हाउ टू हैंडल, है ना. इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ से बिजनेस भी है. बट जब हम ऐसे कहते हैं ना मीटिंग्स में जाते थे कई बार, तो वहाँ हम स्पीकर्स को सुनते थे जो सक्सेसफुल लीडर्स थे, तो वो भी इसी प्रोसेस से गए थे. तो हमें लगा यार इफ दे कैन डू जो वो बता रहे हैं लाइफस्टाइल, या जो भी वो आगे बता रहे हैं रिवॉर्ड्स, है ना. अगर इफ आई कुड मैनेज माई चैलेंज, मेरे को लगता है कि ये सारे रिवॉर्ड्स मेरे पास भी आने. मेरे को लगता है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का वो था कि जो इफ अ लेडी कैन मैनेज द टाइम ना, मुझे लगता है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है. अगर हम सुबह उठ के देखें ना, अगर मुझे लगता है कि देखिए कई लेडीज़ को लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे करेंगे, है ना. मैं घर भी संभाल रही हूँ, मेरे पास बच्चे भी हैं, मेरे पास जॉब भी है. बट अगर हम सुबह उठ के देखेंगे ना, अगर आप अपना टाइम शेड्यूल बना लो ना, अगर आप देखो कि 2 घंटे के बाद मैं अपना टाइम शेड्यूल बना रही हूँ कि पिछले 2 घंटे में मैंने क्या किया, उसके बाद उसके पिछले घंटे में मैंने 2 घंटे में क्या किया, आप अपना टाइम को ना इजीली मैनेज कर लोगे. एंड मेरे को लगता है कि व्हेन द टाइम इज मैनेज्ड, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड. और चैलेंज सभी के पास होते हैं, उसको ओवरकम करना ना करना वो भी हमारे ऊपर है. मुझे लगता है कि अगर लेडी डिसाइड कर लेना इफ शी वांट टू डू, तो मुझे लगता है नोबडी कैन स्टॉप हर. और अगर वो डिसाइड कर ले कि उसे नहीं करना, तो उसको पुश करके देखो, वो भी आपके हाथ में है. Well said, actually, टीना जी. सी मुझे लगता है करियर के लिए तो आजकल, या मैरिज के लिए तो एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये लड़कियों का आजकल कहते हैं ना अपना डिसीजन है, क्योंकि एवरीबडी इज एजुकेटेड, है ना. लिटरेसी रेट बहुत है, एंड एवरीबडी इज टेकिंग देयर ओन डिसीजन. अब कोई वैसा पुराना कल्चर नहीं है कि तुमको शादी करनी है. नाउ द गर्ल्स आर करियर ओरिएंटेड, है ना. इट्स ऑल अप टू देम, और ये इनका पर्सनल अपना डिसीजन रहेगा. बट यस, मेरे को लगता है कि शादी एक राइट एज पे होनी चाहिए, है ना. फैमिली इज मस्ट, और एक आपको एक कंपेनियन चाहिए होता है ना. एंड पर्सनल उसकी बात करूँगी मैं, तो मैं यही कहूँगी, बैलेंसिंग की बात करूँगी तो मैं यही कहूँगी कि देखिए वेदर इट वाज फैमिली और बिजनेस, है ना. देखिए बच्चों को ज़्यादा टाइम देना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी टाइम देना इम्पोर्टेंट है. ये नहीं है कि आप घर से बिजनेस के लिए निकल गए या जॉब के लिए निकल गए तो आपके बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं. तो ये है कि आपने उनको क्वालिटी टाइम देना, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. और देखिए जो भी आप काम कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि वेदर दैट इज़ जॉब, बिजनेस, है ना, आपको होल हार्टेडली वहाँ प्रेजेंट रहना है, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस दे पाओगे. और बाकी देखिए वही मैंने जैसे पहले कहा था कि लेडी अगर डिसाइड कर ले मैनेज करने का, बैलेंस करने का, तो वो सब कुछ करेगी, है ना. इट्स ऑल अप टू यू, योर डिसीजन. मगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए
जब भी किसी लेडी के आगे ना, अगर कोई हाउस वाइफ है, देखिए आई एम इनटू नेटवर्किंग बिजनेस, तो हमारे नेटवर्किंग बिजनेस में हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेदर दे आर एजुकेटेड और दे आर नॉट मच एजुकेटेड, है ना। तो हमें उनको भी अपलिफ्ट करना होता है कि वो आगे आके, है ना, चार्ज लें, थोड़ा अपना बिजनेस का, है ना, थोड़ा अपनी अर्निंग्स क्रिएट कर लें अपने लिए। मगर वो छोटी छोटी अपलिफ्टमेंट है जो मुझे लगता है कि जो उनको शायद थोड़ा बूस्ट अप करती है आगे बिजनेस में आने के लिए। और एक जो वुमेन के आगे है ना, जब वो आगे स्टेज पे आके कहती है दैट आई एम एन बिजनेस वुमेन, तो वही कहते हैं ना, मी अपने लिए अच्छा फील करना, वही उनको एक कितना अच्छा इनकरेजमेंट मिलता है। तो अपने लिए अच्छा फील कीजिए, आपका बिजनेस अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर।